हे गाइस, आपको पता है कि प्रीलिम्स 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है, तो मैंने सोचा एक उसके बारे में वीडियो बना लेता हूँ। तो अ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्या बेसिकली प्लान मेरा ये है कि मैं अपना ही खुद का पेपर स्कैन कर लिया मैंने, और मैं आई गो लाइक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एंड डिस्कस एवरी क्वेश्चन। एंड मैंने कैसे अप्रोच किया था क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, या फिर मैंने तुक्का लगाया। और इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि in the real life situation how would you solve the question, and what position are you in currently, right? So for मेरी qualification, so in last three prelims I've qualified for a IFS cutoff, so which is like at least 10 to 15 number more than the CSE cutoff. So you can rely that okay, I'm like kind of an expert in prelims at least. So yeah, okay, so let's go through the questions. So this was my paper, the section was C. So yeah, this is my paper. So that it started with the polity. So let's read the first question. I'll not read the whole question, I'll just give you the gist of the question. Hope you have the paper, and you can go to this paper with me. So the first question is about panchayat. So basically this question is from, I would say, Lakshmikant. I'll mark it as a Lakshmikant question. So if you have read the book many times, you would know in the question. ये क्वेश्चन ईजियर था, मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें जैसे ये एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, एक्सट्रीम वर्ड है, ये हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑप्शन दिया है कि कोई जो छोटे स्टेट्स हैं उसमें 2 लेवल्स भी हो सकते हैं। सो ये हट गया। 30 नहीं है, आपको पता है कि कोई भी लाइक आई थिंक 21 है, 21 है, क्योंकि देखो अगर लोकसभा का मेंबर 25 है तो उससे छोटे लेवल यानी पंचायत लेवल का 30 नहीं हो सकता, राइट? एंड चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स नॉट ट्रू, द गवर्नर डज इट, राइट? ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है, तो इसमें ऑल थ्रीज आर रॉन्ग, सो मैंने ये लगाया, ऑल थ्री आर रॉन्ग, दैट्स राइट। So this is a basic question, I would say. Not basic, but it can be done by static knowledge. Second, this question is about IR, but it is mixed with the current affair. So honestly, I did not know the question. See, I haven't put any option because I wasn't sure. I still marked this option, but this was wrong option. I guess it was wrong option. I don't remember. So what I did, I went through all of the options, and I tried to eliminate the option which were kind of more specific and which were easy to get wrong. I would say easy to form a wrong statement, right? So I did that. So basically my mistake was I did that question wrong. It should be, this option was correct. If I knew that, and the question would have been solved. So let's move on. So my point here is that मैं इस पेपर में क्यों आपके साथ एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि बताऊँ इवन अ पर्सन हु हैज़ scored well above the cutoff marks does not know many of the questions. अभी आप आगे देखेंगे कि मुझे कितने क्वेश्चन नहीं आते थे एक्चुअली, और कितने आते थे। I'll try to be very honest with you, so you can get like the idea, realistic idea कि आपको कितना आना चाहिए एक्चुअली में पेपर में to score good marks. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने ये प्राइज़ के बारे में पढ़ा था, बट आई डिड नॉट नो कि मेंबर कितने होंगे। सो मैंने बेसिकली ये किया था कि see, since this is a prize, is it general prize, it's not a appointment of member. So what I did was I eliminated these two, Chief Justice of India. I eliminated Chief Justice of India and I went with option 1. This is the wrong option, so you don't need to worry about, now you can learn about it, but this was एग्ज़ाम के समय आदमी का दिमाग थोड़ा कम चलता है, so learn about this question. But again, you can't, this is not I would say basic question, it's not from the static book. You can't, आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. So no one is expecting you to get this question right? Similar for this, both 2 and 3. Let's move to fourth question, right? Okay, most people would have known गगन क्या है, right? कि गगन एक सिस्टम है जो कि बेसिकली GPS टाइप काम करता है. Let's go through options. Let's see the third option. तो काफ़ी जनरल ऑप्शन है, मैंने टिक किया yes. It will provide benefit only to aviation but not to other modes of transport. This ये आपको लगना चाहिए कि काइंड ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट है. वाई वुड नॉट इट प्रोवाइड लाइक सर्विसेज टू शिपिंग, है ना? शिपिंग को भी तो GPS की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट अबाउट डिफेंस? सो इसको रॉन्ग करते ही आपका ऑप्शन आ गया, क्योंकि ऑप्शन ऐसे डिज़ाइंड है. मूविंग ऑन,
ये क्वेश्चन सी मैंने बस इतना सुना था, इस क्वेश्चन में मुझे बस इतना आता था कि एक एआई समिट हुई है पेरिस में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। अगर इतना मैं देख के ये क्वेश्चन छोड़ दिया होता, अगर मैं फर्स्ट टाइम बेसिकली पेपर दे रहा होता, तो इतना ही पढ़ के मैं छोड़ देता ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। बट मैंने सोचा लेट्स लाइक रीड द ऑप्शंस, ठीक है। को चेयर विद इंडिया एंड बिल्ड्स ऑन द एडवांसमेंट मेड ऑन द ब्लेसली पार्क समिट हेल्ड इन 2023, राइट। मुझे ये पता है ये हुआ था, ये सही बात है। सो इट्स अ वेरी जनरल पॉइंट, आई वुड से इसको छोड़ के जनरल पॉइंट है कि पुरानी वाली समिट के आगे बेसिकली इसने नैरेटिव को आगे बढ़ाया फॉर एआई, राइट। यूएस यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एआई। रिमेंबर, कभी भी यूएस कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन को साइन, आई मीन लीस्ट प्रोबेबल है कि वो साइन करेगा। सो आई थॉट कि ये ऑप्शन गलत होना चाहिए, क्योंकि इसने यूएस और यूके दोनों को इंक्लूड किया है, ठीक है ना। ब्लेसली पार्क यूके में है, ब्लेसली पार्क। सो यूके ने किया होगा बट यूएस नहीं करेगा, बिकॉज यूएस किसी भी रेगुलेशन, खासकर नई टेक्नोलॉजी में रेगुलेशन लास्ट पे लाता है। सो वी हैव रेगुलेशन फॉर एवरीथिंग इन क्रिप्टो, बिटकॉइन, बट नॉट इन यूएस। सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। मैं ये क्वेश्चन इसको टिक किया और ये सही हो गया, राइट। ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, देखो मैंने रॉन्ग लगा दिया कि मुझे इस बारे में सोचना नहीं, क्योंकि 4 अलग अलग चीज़ें और मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं आता था। सो ये मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये पेज 1 हो गया। लेट्स मूव टू पेज 2, ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, आपको ये ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने इसे ये भी नहीं पता था मुझे, मैंने इसको क्वेश्चन मार्क गलत मैंने लगा दिया था और इसको मैंने गलत कर दिया था। तो ये प्रीलिम्स बेसिकली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो जाना चाहिए बेसिकली, बट अगेन इसमें क्या है ना, ये मल्टी कल्चरलिज्म है, ये भी गलत दे दिया था। सो इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, सो आई गॉट इट रॉन्ग, डजेंट मैटर, it's all right. Okay, now eighth question फिर again static question from polity. Now you should like have attempted this. The power of Lokpal applies to public servant of India but not of Indian public servant posted outside. This has to be wrong. ऐसा क्यों होगा कि लोकपाल सिर्फ इंडिया की बॉर्डर तक ही लगेगा? अगर इंडिया का कोई ऑफिसर कल को यूएस जाता है और वहाँ पे करप्शन कर देता है इंडियन एम्बेसी में, क्या वो नहीं होगा? सो इट हैज़ टू बी रॉन्ग। इसको मैंने गलत कर दिया, राइट। ओके, फिर क्या हुआ, इसको गलत करने से क्या होता है, फर्स्ट गलत हो गया, राइट। और ये पॉइंट एक्चुअली आपको ओके लेट मी थिंक, ये ओके। सो वन थिंग कि यहाँ पे ये वाला जो वो है ना, तो अगर आप तुक्का मारते हैं ना तो ये गलत कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या था ना, मैंने मेंस के लिए पढ़ा था ये टॉपिक जब आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस के लिए गवर्नेंस में ये लोकपाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें आपको पढ़ना होता है। सो आई न्यू दिस पॉइंट, सो आई न्यू द थर्ड ऑप्शन वॉज करेक्ट, राइट। सो आई न्यू द थर्ड ऑप्शन वॉज करेक्ट, आई न्यू द सेकेंड ऑप्शन वॉज रॉन्ग। सो इसलिए मैंने कर लिया कि ये फर्स्ट होगा। सो आई वुड से कि स्टैटिक बट टफ। क्यों? अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे, दैट्स ओके। अगर आपने कभी मेंस दिया हो तब आपने ये पढ़ा होगा, उसके लिए ईजी होगा। सो इसीलिए न कहते हैं कि मतलब प्रीलिम्स और मेंस का साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए। मूविंग ऑन, ये मुझे नहीं पता था, मैंने देखो इसमें गलत कर रखा, जबकि ये शायद सही है। तो ये गलत करके मैंने गलत ऑप्शन में टिक लगा दिया, जो कि मेरा गलत हो गया। सो डजंट मैटर। ओके, दिस क्वेश्चन आई न्यू बिकॉज मैं चेस ऐसे देखता भी था, सो जनरली आ गया। अभिमन्यु मिश्रा, मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था जिसमें अभिमन्यु मिश्रा वॉज लाइक बीटिंग सम चेस यूट्यूबर्स। सो आई न्यू दैट पॉइंट, आई न्यू दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, दिस वॉज नॉट रशियन प्लेयर, दिस वॉज चाइनीज़ प्लेयर। सो दिस क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। सो अगेन मैंने ये यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा था, आई वॉज जस्ट इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडियन जीता था। सो आई जस्ट वॉच्ड इट, राइट। मूविंग ऑन, 11th क्वेश्चन। सो अगर अभी तक का पेपर देखा जाए, इट वुड बी वेरी टफ बिकॉज मेरे से शायद 2 या 3 क्वेश्चन प्रॉपरली हुए हैं, राइट। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा परफॉर्मेंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो मैं काफ़ी निराश हो जाता, लेकिन नहीं होना चाहिए। I'll tell you why. See, 11th question, very easy question, super general statement. You just go through it and mark it right? Again, 12th question, I would say I again got it wrong. I knew this was wrong. I thought this was wrong क्योंकि मुझे लगा इंडिजिनियसली डेवलप्ड है तो वो होगा, और I thought this was wrong too, right? मैंने सोचा RFID would not be useful, but it was useful, so I think this was the answer. But मैंने ये लगा दिया, so I was wrong. So
अगेन फिर से एक क्वेश्चन रॉन्ग एंड ओके मूविंग ऑन टू 13 में क्या होता है देखो हाउ मैनी स्पेस मिशंस गिवन अबव इंकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च सो इफ़ यू हैव रेड द साइंस एंड टेक माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इज़ वन ऑफ द लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्पेस रिसर्च हम स्पेस में जाते ही क्यों हैं स्पेस इंडियंस लाइक इंटरनेशनल जो स्पेस सेंटर है उसमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च वहीं पे होती है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम होती है राइट तो कोई भी आई वुड से स्पेस मिशन विच इज़ गोइंग टू स्पेस विल लाइक एंड अप लाइक इंकरेजिंग एंड सपोर्टिंग दी माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इसीलिए मैंने ऑल 3 लगा दिया क्योंकि ये भी स्पेस में जा रहा है ये भी स्पेस में जा रहा है ये भी स्पेस में जा रहा है सो अगर कोई भी मिशन स्पेस ओरिएंटेड है तो वो इस माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को फेवर करेगा हमें बस ये पता होना चाहिए था कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कहाँ होती है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च स्पेस में होती है दैट्स इट जहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है दैट्स इट अगेन तो इस क्वेश्चन में 3 टाइप के वो हैं प्लेन है आई वुड से डॉर्नियर हमने यूएस से इंपोर्ट किया है दिस इज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये 2 या 3 साल पुराना क्वेश्चन है C-17 ये भी 2-3 साल पुराना आई वुड से करंट अफेयर है जिसमें मिलिट्री प्लेन हमने वो किया अब ये देखो ये क्वेश्चन ना देखो सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया में 4 या 5 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि सुपरसोनिक है एक्चुअली राइट उसके अलावा नहीं है वी कैन काउंट देम इन फिंगर्स लाइक आई थिंक JF-20 इज़ सुपरसोनिक आई थिंक F-35 इज़ एंड सुखोई 57 इज़ राइट तो IL-76 तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर होता तो मैंने सुना होता दैट्स वाई द आंसर इज़ 2 सो अब आपको लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये ऑप्शन क्यों लिया सो आई यूज़ दिस सिंबल जब मुझे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है सो पहले हुआ क्या कि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने ये 2 क्वेश्चन क्योंकि मुझे पता था कि दिस वन इज़ राइट आई वॉज कन्फ्यूज इन दिस तो मैंने क्या किया 2 और 3 को लगा दिया एट द एंड मैंने ये लॉजिक लगाया कि अगर ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता तो मुझे पता होता क्योंकि ये छोटी बात नहीं है बहुत कम है दुनिया में ये एंड दैट्स वाई आई एलिमिनेटेड द सेकंड ऑप्शन आई सेड दिस वाज रॉन्ग तो आई मार्क द 2 मूविंग ऑन आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल दिस इज़ आई वुड से कोई भी आप मैगजीन पढ़ोगे उसमें आप क्लाउड सीडिंग पढ़ोगे उसमें आपको सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला मिलेगा दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आई वुड से बेसिक फ्रॉम इन्वायरमेंट सो दिस शुड हैव बीन डन ओके मूविंग ऑन फिर से पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत क्वेश्चन आई वुड से बेसिक अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है देन यू शुड हैव डन द क्वेश्चन सी इसका सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्डनिंग पावर ये बिल्कुल कैटेगरीली रॉन्ग है इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये पार्डनिंग पावर वुड बी एक्सरसाइज बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से हो जाता अगेन 17th अगेन पॉलिटी ओके सो इस पेपर में एक बात थी पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो दे वर रिलेटिवली आई वुड से फ्रॉम द बुक यू डोंट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी बट द प्रॉब्लम वॉज दे वर ह्यूज क्वेश्चन सी कितने लाइन में क्वेश्चन था जब क्वेश्चन आपको एक्चुअली में पढ़ना पड़ता है ना एग्जाम में यू गेट लाइक फ्राइटेंड कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है बट आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन ईजी है सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हाउस ये आपको पता है कि नहीं होता है इनफैक्ट दिस इज़ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट की प्रपोज्ड रिफॉर्म इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर जैसे यूके में होता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी पार्टी से रिज़ाइन नहीं करता ठीक है तो ये ऑप्शन सी आ गया इजी आई वुड से इजी क्वेश्चन ठीक है इफ़ एनी question arises whether the member of house has been subjected to disqualification the president's decision again easy question anti defection law के ऊपर है this is not president this is speaker ठीक है ये गलत हो गया there is no mention of the word political party okay now इस ऑप्शन में मुझे अगेन कन्फ्यूजन था देखो मुझे ये पता चल गया था कि 1 नहीं होगा सो दिस ये गया ठीक है इसमें डाउट था लेकिन मुझे पता था कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उससे एक शेड्यूल ऐड हुआ था जो कि है शेड्यूल 10
ठीक है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन होगा क्योंकि उसमें बताया, उसमें डिटेल दी गई थी कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो लाइक कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा और पार्टी चेंज करेगा तो डिस्क्वालीफाई होगा, उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी मेंशन करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ आई न्यू कि पॉलिटिकल पार्टी वुड बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसलिए मैंने इसको रॉन्ग किया क्योंकि इसमें बोल रहा है नो मेंशन, राइट। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। Again, in India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect to extraction of mineral. This was current affair polity. Current affair polity. ये तमिलनाडु में एक केस हुआ था जिसमें आई वुड से रॉयल्टी ऑफ मिनरल वाला केस था। आपको उसको अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होता देन यू वुड हैव गॉट इट करेक्ट कि ये रॉन्ग है। मतलब नो पावर इज़ ऑल्सो लाइक एक्सट्रीम टर्म, क्योंकि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि आप रॉयल्टी ले सकते हो मिनरल से, राइट। तो ये गलत हो गया। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ, दैट्स करेक्ट। तो इसका आई थिंक मिनरल्स एक्ट जो है ना, मिनरल्स एक्ट आई थिंक 1967 है, उसमें ही है। तो बेसिकली दोज मिनरल्स विच आर नॉट नोटिफाइड इन दी शेड्यूल आर लाइक माइनर मिनरल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो आपका ऑप्शन आंसर राइट आगे डी। ओके, अब देखो, अगर प्रीवियस ईयर्स आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कोई भी इंपॉर्टेंट लॉ आता है, यूरोप में आता है या फिर यूएसए में आता है, दे ऑलवेज फाइंड मेंशन इन द PYQ. This was mentioned in the European, like this was mentioned in the this year's current affair. तो I would say current affair but easy question, बिकॉज हमें ट्रेंड पता है यूपीएससी का, हमें पता है कि उसने पहले भी क्वेश्चन पूछा। जब डेटा रेगुलेशन में क्वेश्चन आया था, EU ने जब रूल लाया था तब भी क्वेश्चन पूछा था, तो इट वाज इजी क्वेश्चन, आई वुड से प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। मूविंग ऑन, काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव अराइव्ड एट हिस्ट्री। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। ओके, महात्मा गांधी ने कब कहा था बेसिकली? तो देखो, कभी कभी क्या होता है, किस्मत उल्टी हो जाती है। अभी मैंने सोचा कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि ये होगा, राइट। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जब मुझे टिक लगाना था, आई सेकंड गेस माई सेल्फ और मैंने सोचा कि ये होगा, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सेडिशियस मूवमेंट, यू नो। गांधी जी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश डायरेक्टली, बट the answer is this, so I was wrong. These two options were like most likely option because Gandhiji was taking action against British, so sedition word would be more appropriate then. ठीक है। डांसिंग गर्ल इन हड़प्पा मोहनजोदाड़ो was very easy. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये कोई भी क्वेश्चन कोई भी गलत कर ही नहीं सकता। इजी क्वेश्चन है मुझसे, वेरी इजी। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, हु प्रोवाइडेड द लीगल डिफेंस फॉर द पीपल ऑफ। ओके, देखो ये क्वेश्चन किसी ने कोई भी पढ़ के नहीं गया होगा, ये सब लोग रैंडम गेस कर रहे होंगे, राइट। अब होता क्या, मैंने तो जिन्ना लगाया था, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा एक ऑड ऑप्शन होगा, है ना, मोस्ट ऑब्वियस नहीं होगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट गेस भी हो सकता है। एक मेरे फ्रेंड ने जिसने ये सही किया था गेस वर्क करके, उसने क्या बताया था कि देखो ये नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलमोस्ट उस समय जेल में थे। सैफुद्दीन किचलू के ही प्रोटेस्ट में वहाँ पे अमृतसर में जो जलियांवाला कांड हुआ था, है ना, तो ये तो जेल में थे, तो ये नहीं हो सकते। और उसने बोला कि देखो इसमें दो नाम लिखे हुए हैं, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। इफ़ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी, इफ़ द क्वेश्चन मेकर ने जब ये मेहनत की होगी, सो मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन कैन बी राइट, है ना। ये एक लॉजिक है, ये कोई, है ना, टूटा फूटा लॉजिक है, बट यू कैन थिंक दैट वे एंड समटाइम्स इट वर्क्स एंड इट्स इनफ समटाइम, ठीक है। तो मैंने ये लगाया था, क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा अलग है ना, जिन्ना लीस्ट लाइकली कम लोग सोचते हैं, और किसी ने ये लगाया था। इन्हीं दोनों, आई वुड से कि इंटेलिजेंट गेसिंग इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए थे। आंसर ये था, मैंने ये लगाया था, तो गलत था मेरा। एनीवे, subsequent to which of the following events Gandhiji, who constantly opposed untouchability, appealed for its eradication from all spheres? Right. Okay, so this was Pune Pact. और अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो उसमें ये तो मैंशनड होगा कि पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने आई वुड से कि सोशल वर्क फॉर हरिजन्स को ज़्यादा तेज़ी से किया है। आपने ये एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ा होगा, पर आपको ये दिमाग लगाना है कि ऑब्वियसली पूना पैक्ट ही होगा, क्योंकि ओनली दिस थिंग इज़ रिलेटेड टू हरिजन्स, राइट। अनटचेबिलिटी, एससी शेड्यूल कास्ट, अदर थिंग्स आर टोटली इररिलेवेंट टू द अबव क्वेश्चन। सो दिस वाज द आंसर। अभी देखो, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पुर्तगीज़ क्या लाए थे, और इसका सबसे इजी आंसर ये होता है कि जो भी फॉरेन लगता है ना, वो हमेशा
पोर्तुगीज़ ही लाए होते हैं, बिकॉज दे वर द फर्स्ट यूरोपियन एंड दे हैड द कॉलोनी ओवर साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जितने भी पौधे थे दे बॉट इंडिया, है ना, यहाँ पे प्लांटेशन शुरू किया। पपाया, अभी देखो पपाया का हिंदी नाम क्या है? पपीता। पपीता इज़ वेरी सिमिलर टू पपाया। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से आया? सो ऑल दीज फोर थिंग्स, द थ्री थिंग्स आर आई वुड से इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज़। सो ऑल थ्री वाज ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। देखो मैंने सोचा छोटी छोटी कंट्रीज़ के ज़्यादा टाइम जोन्स नहीं होते होंगे, बट अपेरेंटली होते हैं। सो इसको तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पाया, से मैंने तुक्का लगा दिया था, ओनली 2। ओके, दिस इज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर है। डेट लाइन जहाँ से डेट लाइन के वन साइड एक दिन पहले होता है, उसके दूसरे साइड एक दिन बाद होता है। और डेट लाइन कहाँ से गुजरती है? ये आपका अगर अमेरिका है और ये आपका अलास्का है और ये रशिया, यहाँ से गुजरती है डेट लाइन। सो तो इसके एक साइड एक दिन पहले होता है और एक दूसरे साइड एक दिन बाद होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये पॉसिबल है। ये आप डेट लाइन जब पढ़ोगे, आई वुड से जियोग्राफी में है ये सेकेंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर इन द 11th जियोग्राफी, NCERT। सो इट्स NCERT क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है फिर यार, इजी क्वेश्चन। ओके, बोत्सवाना मुझे पता है कि डायमंड की इसमें वो होती है। कैसे पता? मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया था कि बोत्सवाना इज़ लाइक नॉट अ टिपिकल अफ्रीकन कंट्री, इट इज़ ए हाईली डेवलप्ड कंट्री एंड वन ऑफ द रीज़न फॉर इट्स डेवलपमेंट इज़ द डायमंड माइन। चिले हमें पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। सो बोथ दीज आर करेक्ट। आई वॉज डाउटफुल इन दिस। सी, मैंने निकल लगाया हुआ कि क्वेश्चन मार्क, बट अगेन मेरी इंट्यूशन बोल रही थी कि सही होगा, तो मैंने ऑल 3 लगा दिया। ठीक, मैंने काफ़ी पढ़ा है, फिर भी मैंने नहीं पढ़ा था एक्सप्लिसिटली कि निकल इंडोनेशिया में होता है। अगेन यू कैन कॉल इट गेस, यू कैन कॉल इट इंट्यूशन। जब आपकी नॉलेज ब्रॉड होती है तो आपकी इंट्यूशन भी एक्यूरेट होती है, तो आपको इसको भी फैक्टर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आते ही मुझे पता था नॉर्मंडी फ्रांस में। नॉर्मंडी फ्रांस में क्यों है? क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, अगर नहीं भी पढ़ी होगी, पॉपुलर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें नॉर्मंडी में क्या हुआ था कि जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन किया था तो दे लैंडेड ऑन नॉर्मंडी एंड नॉर्मंडी फ्रांस में। तो मुझे पता है कि ये गलत है और ये गलत है। जनरली होता क्या है UPSC में कि अगर UPSC 3 ऑप्शन देता है, ऐसे B, C, 2 and 3, अगर आप उसने 3 ऑप्शन दिए, अगर आपको पता है ये इससे मैच हो रहा है, तो आपको ये भी 100% श्योर हो जाता है कि ये इससे मैच नहीं हो रहा होगा। जनरली ऑप्शंस ऐसे होते हैं, तो आपको पता चल गया 2 गलत हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। आप देखो, इसमें मुझे पता था नॉर्मंडी नहीं है, तो मुझे पता है ये गलत है। और मुझे पता है सार्डिनिया जो है इटली में था, क्योंकि मैंने वो कंपाइलेशन होते हैं ना, वीडियो प्लेसेस इन न्यूज़, उसको मैंने पढ़ा था, उसमें पता था कि सार्डिनिया इटली में है। तो ये दोनों गलत, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। कभी UPSC ऐसा नहीं करता कि फ्रांस की 2 चीज़ें दे दी, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, तो मतलब इसलिए ये होना चाहिए। और इसके लिए अगेन PYQ हेल्प। आई न्यू द पैटर्न ऑफ मैचिंग टाइप क्वेश्चन, कि अगर मैंने जो अभी आपको वो सिखाया था ना कि मैचिंग में हमेशा अगर ये चीज़ इसके साथ मैच कर रही है तो पक्का इसके साथ मैच नहीं कर रही होती है। तो ये पैटर्न आई वुड से ये एक्सपीरियंस मेरा इस क्वेश्चन में काम आया था। सो D इज़ द ऑप्शन। आई एम होपिंग इट इज़ हेल्पिंग पीपल, बिकॉज क्वेश्चन लाइक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई वुड से अनकन्वेंशनल था, बट इट इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन काहे की डेफिनेशन, रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन, फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन और प्राइमरी डेफिसिट की। बस ये डेफिनेशन आती है अगर आपको, तो आप सीधा कर सकते हो। मैंने बस ये देखो यहाँ पे बस कैलकुलेट कर लिया, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। अगेन मूविंग ऑन। ये क्वेश्चन में मुझे इन दोनों में डाउट था, देख भी रहो, ये दोनों को मैंने क्रॉस कर रखा है, इन दोनों में डाउट था, मैंने ये लगाया था। देखो इसमें हर कोचिंग अलग अलग आंसर दे रही, सो इवन आई एम नॉट श्योर, अभी तक नॉट श्योर कि UPSC ने कैसे आंसर सही माना है। अगेन इसमें मैंने गलत कर दिया। बेसिकली अमेरिका इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, मैंने ब्राज़ील को मान लिया, सो ये मेरा गलत हो गया। सो आई कांट कमेंट मच ऑन इट। ये मुझे पता था कि सही होगा, ये देखो मैंने ट्रू लगा रखा है, और ये मुझे पता था कि डाउटफुल में। अगेन कभी कभी लक से सही भी होता है, गलत भी होता है। सो कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन लक। ओके, दिस इज़ वेट बल्ब टेम्परेचर। आपको देख के घबराना नहीं है, बस आप अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप
काफ़ी जनरल ऑप्शन लग रहे हैं, और टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो दीज टू थिंग्स आर आई वुड से हाईली लाइकली, इट्स अनलाइकली कि ये ट्रू ना हो। तो अगर ये क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ते हो तो आपको लग सकता है ये क्वेश्चन टफ है, बट अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इज़ नॉट दैट टफ, इट्स अ काइंड ऑफ जनरल क्वेश्चन। फिर से आपको इसमें सिर्फ एक वर्ड आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ये आपको आई वुड से कंफ्यूज कर सकता है, बट अगेन जब आपने अच्छे से पढ़ाई की हो आपको पता रहेगा कि देयर इज़ नो स्पेशल टर्म कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, हमेशा प्राइमरी डेफिसिट ही होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो यू नो दैट इट्स लाइक डिफ़िकल्ट टू फूल यू। तो मैंने क्या किया, प्राइमरी डेफिसिट ही निकाल के उसका आंसर निकाल दिया और उससे ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये गलत था, है ना, यहाँ 41 होना चाहिए, ये गलत देखते ही ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन। आगे ओके, अगर आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि देखो ये तो जनरल क्वेश्चन है, मिडिल इनकम कंट्री इंडिया भी है, और इंडिया को वर्ल्ड बैंक लोन देता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट, and it gives loans to India, and India is a middle income country, so obviously this is true. It works single-handedly to help developing country to reduce poverty. I mean single-handedly, right? I mean किसी और चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, किसी और कंट्री को हेल्प नहीं कर सकता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत। इट वॉज स्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप, या राइट। अगर आप वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री पढ़ोगे, दिस इज़ द हिस्ट्री, इट वॉज मेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू लाइक दोज कंट्रीज विच वर लाइक डिस्ट्रॉयड बाई वर्ल्ड वॉर, इट वॉज देयर टू हेल्प देम। तो ये सही हो गया, है ना, एक गलत हुआ तो आंसर आ गया आपका। ओके, दिस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज था, मैंने ये ऑप्शन बेसिकली राइट होना था, मैंने इसे रॉन्ग कर दिया और मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये आंसर होना था, मैंने ये लगाया था, तो मेरा गलत था। मूविंग ऑन, यूपीआई, देखो किस देश में यूपीआई है। अब देखो हम ऐसे उड़ती खबर सुनते, देखिए देखो ये कंट्री रेडी हो गई यूपीआई के लिए, वो कंट्री हो गई, बट मैंने कभी याद नहीं किया था। बट अगेन नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, मुझे पता था कि यूएई हो गया। यूएई क्यों है यूपीआई में? क्योंकि यहाँ पे लार्ज इंडियन पॉपुलेशन रहती है और अप डाउन करती रहती है, सो यूपीआई इज़ देयर, है ना, एयरपोर्ट में भी है, हर जगह है, सो दिस इज़ राइट। फ्रांस मैंने पढ़ा था। अब देखो बांग्लादेश, ये सिंगापुर वॉज वेरी लेटेस्ट, आई वुड से करंट अफेयर में ही था। बांग्लादेश इज़ काइंड ऑफ यू नो दे हैव वेरी लाइक निगेटिव रिलेशन विद अस, तो मैंने इसको हटा दिया था और जर्मनी को हटा दिया था क्योंकि जर्मनी में नहीं है, तो इसलिए यू नो थोड़ा लक एंड थोड़ा नॉलेज दोनों काम आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, दिस इज़ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। देखो बेसिकली बात ये है कि मैंने ये सोचा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो ट्रेनिंग नहीं दे रही है ना, इसकी ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ आई वुड से स्किल डेवलपमेंट दे रही है, तो मैंने इसको क्वेश्चन को गलत, इस ऑप्शन को गलत कर दिया और दोनों को सही कर दिया, तो मैंने ये ऑप्शन लगाया है। डिफरेंट कोचिंग इसमें फिर से डिफरेंट बता रही हूँ, सो आई कॉन्ट लाइक कमेंट ऑन इट, दीज टूज आर लाइक जनरल स्टेटमेंट्स। ओके, पॉलिटी, ये पॉलिटी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इट्स आई थिंक अबाउट ऑर्डिनेंस, राइट, या ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ट्रू। कैन abridge fundamental right, wrong, because ordinance cannot abridge a constitution, like ordinance can't be constitutional amendment act, they can't change the constitution, so they can't change the fundamental rights, and ordinance can come into effect from back date. See, अगर कोई ordinance ऐसा है जो let's say it's talking about taxes, it's about some rule, you know, not concerned with the criminal act, so they can be back date also. सो अगर आप ये गलत कर लेते ना, क्वेश्चन वुड बी सॉल्व्ड। एंड अगेन थोड़ा ये टफ क्वेश्चन आ गया इसमें। देखो मुझे ये ऑप्शन पता था, ये दोनों नहीं पता थे, टू बी फेयर, बस, तो मैंने इसको आई थिंक ओनली 2 किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था देखो एक सही है, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तुक्का मार दिया था मैंने सोचा था इतनी डिटेल दी है, कोई एक गलत होगा, मैंने ओनली 2 लगाया, आई थिंक किस्मत से सही हो गया। अगेन इसमें बेसिकली पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, एक ही बनी है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, बेसिक आई वुड से, इन दोनों का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फेयर्स ऑफ गवर्न, या ओके, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आई वुड से टेक्स्ट पढ़ा है, सो देयर इज़ अ मेंशन कि गवर्नर की पावर क्या है, सो दे से दैट द गवर्नर हैज़ अ प्रोविजन, लाइक governor has discretion to decide what is the power of governor, right? So if you have, I think it's article 163, it talks about the power of governor,
and it mentions the word discretion, that it says that the governor decides what is his discretion is. So it does explicitly mention. वैसे तो ये explicitly mentioned is kind of a negative sentence and it should be wrong, but it's a kind of exception, it does mention it. Again, President of India can reserve a bill passed by state legislature for his own consideration without it being forwarded by governor. कभी तक आपने, अगर मैंने 10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी, कभी ये नहीं पढ़ा. सो दिस मस्ट बी रॉन्ग. सी, अगर प्रॉपर स्टडी का फ़ायदा ये होता है कि यू नो व्हाट इज़ राइट एंड यू ऑल्सो नो व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ़ वर टू बी पॉसिबल, आपने तो सुना होता ना, आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है ना, सो पढ़ाई अच्छे से काम आती है. ये देखो, ये एक क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ कि आदमी पढ़ लिख के भी जाता है ना, तब भी मूर्खता करता है. सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड, इट्स ऑल राइट. देखो, ये सही लगाया मैंने, ये सही लगाया मैंने, ये सही लगाया मैंने, और फिर यहाँ पे भी सही लगाया मैंने, और फिर मैं जब क्वेश्चन OMR टिक करने की बारी आई, मैंने इसको सही कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे लगा शायद ये 14 नहीं 18 है. अगेन स्टूपिडिटी, utter stupidity, but it happens, you know, part of being a human. This is again basic question from schedule area. Wrong. D is the answer. आप पढ़ लेना ये. See, ऑटोमेटिव बोर्ड कॉमर्स में नहीं होगा, हैवी इंडस्ट्रीज़ में होगा. आपको ये काइंड ऑफ इंट्यूशन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिव बोर्ड इज़ रिलेटेड टू, यू नो, कार, ऑटोमोबाइल्स, एंड इट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डील करती है इस चीज़ों से, कॉमर्स से नहीं करती. कॉयर बोर्ड, ये तो अब एग्रीकल्चर से होना चाहिए ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है. कॉयर बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ कोकोनट. सो दिस इज़ रॉन्ग. अगेन यहाँ पे भी देखो, आप पैटर्न दिख रहा है. पैटर्न ये दिख रहा है कि अगर मैचिंग में ये चीज़ इससे मैच हो रही है ना, तो इसके सामने वाला पक्का गलत होगा. देखो, ये इससे मैच हो रहा है, तो ये दोनों गलत होंगे. अगर आपको एक भी पता होता है कि ये गलत है ना, ये इसके साथ हो रहा है, अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं होगा, जो मैंने पहले बताया था. ठीक है, ये दोनों गलत. नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ये मुझे लग रहा है कि ये भी इससे होगा. सो ये भी गलत था. मैंने देखो, ये आई वॉज नॉट श्योर, बट अगेन मैंने देखो मैंने पेपर में भी ये क्या रखा है, या तो 1 होगा, या तो ए होगा, या तो डी होगा. फिर मैंने लास्ट में डी लगा दिया बिकॉज ऑफ इंट्यूशन. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. इट ऑल्सो वर्क्स इन नेगेटिव वे, बट वी हैव टू, यू नो, अटेम्प्ट लाइक 90+ क्वेश्चंस. सो ये सब चीज़ें तो काम आनी है, कितना पढ़ लेंगे. एंड अगेन दिस वॉज ईजी क्वेश्चन. कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, लाइक you don't need to change the like constitution to do that, like you don't need states ratification to do that. अगर आप इतना guess कर लेते हैं, intuition कर लेते, तो ये आ जाता आंसर आपका. It was, I would say, medium question, क्योंकि आपको eliminate करना पड़ेगा. क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टेट की कोई पावर कम या ज़्यादा करता है, तो you need this permission of the state. And the schedule, आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था. लाइक एनी अमेंडमेंट विच टेक्स अवे एनी पावर नीड्स द रेटिफिकेशन. सो दीज टू कैन नॉट बी ट्रू. दिस मतलब दिस टू नीड रेटिफिकेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड डजंट नीड एनी. अगेन, अगर आपने गवर्नर पढ़ा है, ऑल 3 थिंग्स आर पावर ऑफ द गवर्नर. दिस इज स्पेशल प्रिविलेज टू गवर्नर, नथिंग एल्स, जस्ट बेसिक लक्ष्मीकांत रीडिंग. ओके, अगेन इंट्यूशन, कोई भी पढ़ के नहीं गया होगा. व्हाट इज़ दी, लाइक व्हाट आर थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड गैस रेगुलेटरी. हमें पता है, देखो 4 तरह के काम दिए हैं, ठीक है ना. टू थिंग्स आर काइंड ऑफ सिमिलर, टू थिंग्स आर काइंड ऑफ डिफरेंट. कैसे? प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये 2 प्रोडक्शन के काम है, और बाकी 2 ये बाद के काम है, बेसिकली रिफाइनिंग और मार्केटिंग. मैं ये कह रहा हूँ कि सारे काम तो नहीं करेगा ना, कोई मार्केटिंग का काम करेगा, कोई रिफाइनिंग का काम करेगा, ठीक है ना. तो बेसिकली मैंने ये किया कि ये दोनों काम करती होगी और ये नहीं करती होगी, है ना. दो टाइप के काम है, मैंने कहा एक टाइप का ही करती होगी, तो मैंने ये क्या, ओनली 2 लगा दिया, दैट्स इट. अब इसमें जितने भी लोगों ने सही किया होगा, उन्होंने यही लॉजिक लगाया होगा, है ना. ऐसा ही कोई लॉजिक. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लर्न एवरीथिंग, यू नो, एवरी बॉडी डज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइट हैव 500, यू नो, रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड बॉडीज़. कहाँ तक रटोगे सारे सबके काम. तो ये लॉजिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, दिस क्वेश्चन ये मैंने सब कर दिया. क्यों? देखो, यहाँ पे मैंने पहले लगाया था ये, लेकिन मैंने उसको फिर ऑल कर दिया. क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन. साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में अनलेस एंड अनटिल यू नो समथिंग टू बी रॉन्ग, इट हैज़ टू बी राइट. ये आप फॉर्मूला रट लो, अभी काम भी आएगा. देखो,
अगेन ऑल जनरल स्टेटमेंट, ऑल करेक्ट, ऑल नॉट करेक्ट, सो इसमें नॉट करेक्ट था ना, कैन डू वर्टिकल, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑल इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये गलत गलत गलत, डी नन। ओके, यहाँ पे आते हैं, ये काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू व्हाई। देखो पूछा है कैथोड, कैथोड कौन सा एलिमेंट कैथोड के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको पता है कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन। और आपको पता है लिथियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज़ उसको कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता, तभी तो बैटरी में यूज़ होता है एज ए एनोड, ठीक है। तो ये तो बंदा तो एनोड में यूज़ होता है, तो ये तो नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स ऑन कि दूसरा एलिमेंट क्या है। आपको अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता हो तो ये हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम इज़ ऑलवेज यूज एज ए नोड, नेवर यूज एज कैथोड, इतना नॉलेज बस हो तो ये ओनली 3 आ जाएगा ऑप्शन। तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना बहुत लिमिटेड नहीं होती। आप कौन सा आपका नॉलेज, आप कभी नेट जियो में ब्लू अर्थ कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, पता नहीं उससे क्वेश्चन आ जाए, और आप कभी कभी एक पूरी बुक हिस्ट्री के पढ़ लिए, उससे एक भी क्वेश्चन ना आए। सो बोथ थिंग्स डू हैपन। किन चीज़ों में प्लास्टिक होता है? अबे सब में प्लास्टिक होता है, सब में प्लास्टिक होता है, ये ईजी। कोल गैसिफिकेशन, देखो जो मैंने लॉजिक अभी तक लगाया ना, ऑल और नथिंग वाला, ये यहाँ पे फेल हो गया। लोग बोल रहे हैं कि ये नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होगा। अब देखो मुझे नहीं पता था कि नाइट्रोग्लिसरीन में कोल गैसिफिकेशन, मुझे पता था कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन मिलता है, CO मिलता है, CO2 मिलता है, ठीक है, और CH4 मिलता है। इन सब चीज़ों से तो मुझे लगा कि क्या पता कोई इसका भी इंग्रेडिएंट होता हो। टर्न्स आउट नहीं होता है, टर्न्स आउट ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है, दैट्स इट, डोंट नीड टू वरी अबाउट, मूव ऑन। ये शायद ये चीज़ें करंट अफेयर में थी, मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, मैंने ये लगा दिया, कुछ आंसर ये था, कोई बात नहीं। दोनों चीज़ें यूज़ मतलब न्यूज़ में थी, रॉकेट प्रोपल्सन की फ्यूल और एक्सप्लोजिव्स, क्योंकि इतने सारे वॉर चल रहे हैं अभी ना, तो यूज़ में था, बस हो गया। मूविंग ऑन, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट में था, मुझे पता है कि ये अमेज़न ने नहीं किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, बस ये गलत हुआ, दोनों सही हो गए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये आई वुड से स्टैटिक क्वेश्चन हो गया अब तो, क्योंकि कोरोना के टाइम था। अब कोई भी आप मैगजीन पढ़ोगे या फिर SNT का कोर्स पढ़ोगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप पढ़ोगे, उसमें ये तीनों सही हैं, ईजी। नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस कैन, ये सारे गलत। फिर से ये SNT का ईजी क्वेश्चन। आगे, एक्टिवेटेड चारकोल इज़ ए गुड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट, यस। आपको फेस वॉश भी मिल जाएंगे, वो भी यही बोलते हैं कि फेस का जो भी पॉल्यूटेंट पड़े होंगे वो निकाल देंगे। सो अगर आपने गार्नियर का फेस वॉश का ऐड भी देखा हो ना, दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग। एक्टिवेटेड चारकोल एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया, यस। जो भी चीज़ बेसिकली वो करती है ना, एक्टिवेटेड होती है, जो एब्जॉर्ब करती है, वो अपने सरफेस एरिया पे करती है। सो यस, एक्टिवेटेड मीन्स इट इज़ रेडी टू एब्जॉर्ब। और हैवी मेटल, ठीक है ना। अब देखो ये इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड क्वेश्चन कि 3 स्टेटमेंट पूछ लिए, और मैंने एक बार 2-4 टेस्ट सीरीज लगाई थी, मतलब 2-4 मॉक टेस्ट लगाए थे नेक्स्ट IAS के, ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए थे, तो आई काइंड ऑफ हैड द आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये इट काइंड ऑफ हेल्प में। तो एक्टिवेटेड चारकोल अगर ईजिली बन सकता है, कैन बी वेज मेड बाई इन्वायरमेंटल स्टफ, सो इट कैन अट्रैक्टिव क्यों है? ये देखो, अट्रैक्टिव टूल, अट्रैक्टिव तभी होगा इफ़ इट्स इफेक्टिव एंड इट्स अफोर्डेबल, तो दोनों होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि इफेक्टिव होता है, इससे पता चलता है ये अफोर्डेबल होता है, तो ए हो गया। अगेन these kinds of question also made this paper hard. I don't know how people are saying that the cutoff increased based on the results, but I don't know, like maybe people learn too much, because देखो ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन 3 ऑप्शन है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है, और भी कई हैं ऐसे। ये देखो मुझे पता था कि इन दोनों में से एक गलत होना है, एक सही होना है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आता था, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट कर दिया था बस, क्योंकि मुझे एक करना है। देखो मैं क्या क्या लिख रहा था, तो इट डजंट मेक सेंस, मैंने बस रैंडमली लगा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था एक सही है एक गलत है ना। ये गलत लग रहा था, ये सही लग रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, मुझे याद नहीं था। मूविंग ऑन, आई कांट ओके दिस क्वेश्चन, सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द अर्थ। बेसिकली बात ये है,
एंड ये आई थिंक मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि जब पोल से बेसिकली अर्थ आइस पिघलेगी, वो इक्वेटर की तरफ जाएगी एंड इट विल चेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ, उससे आपकी अर्थ के रोटेशन में फ़र्क पड़ेगा. सो बेसिकली ऑल ये तीनों में यही कह रहा है. और ये क्या है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ नॉट रेलिवेंट टू दी आई वुड से द फर्स्ट स्टेटमेंट. सो ये क्वेश्चन, ये बी आंसर हो गया. इनको कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं मुझे, बस क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है. आई कैन मेक अनदर वीडियो बट इट्स नॉट द वे. ओके, मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया सिंपली बिकॉज आई थॉट इट वाज मार्केट स्ट्रैटेजी नॉट नॉन मार्केट स्ट्रैटेजी. ये दोनों मुझे सही पता थे बट अगेन एक स्टेटमेंट के कारण गलत हो गया. ऑप्शन होना था ये, मैंने सी लगा दिया. मूविंग ऑन. नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक. अभी देखो मैंने क्या सोचा कि एशिया और एशिया, ये तीनों एशिया के बैंक हैं. सो अगर आपने एशिया और पैसिफिक लिख रखा है तो नॉन एशिया का मतलब ग्लोबल बैंक होगा, तब ना वो एशिया के लिए स्पेसिफिक नाम ले रहा है. तो मैंने ये लगा दिया, है ना. लॉजिक मेरा ये था. हुआ क्या, आंसर ए है, मेरा गलत था. बट स्टिल यू हैव टू नो कि देयर इज़ अ लॉजिक. अगर वो कोई कुछ क्वेश्चन में गलत होता है, दैट डजंट मीन कि लॉजिक इज़ नॉट यूज़फुल. 5 क्वेश्चन आप करते हैं और 3 सही हो जाते हैं उस लॉजिक से, स्टिल इट्स वेरी यूज़फुल. Direct air capture, I have seen a video of, I think it was Iceland which did this. So they basically have big air funnel, they funnel the air, they capture the CO2 from the air, they freeze the CO2 in dry ice, and they put the dry ice in the tunnels, abandoned tunnels. So that's the whole thing. Peacock tarantula, see I know tarantula क्या है, मकड़ी है. Crustaceans are the kind of, they live in the sea, they can't be makadi. So this is wrong. Okay, I देखो second option पढ़ो. Its natural habitat in India is only limited to some forest areas. I mean इसका उल्टा क्या होगा कि natural habitat in India is it is found across all India, है ना. This cannot be true. And कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो इंडिया में हर जगह पाई जाती होगी, क्योंकि इंडिया हैज़ डाइवर्स इकोसिस्टम, राइट. तो ये तो गलत होना है. आई मीन सॉरी मैंने गलत बोल दिया. इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू. सो इसका ऑपोजिट अगर आप करो तो वो तो गलत होना ही है ना. कोई भी चीज़, दिस इज रिगार्डलेस कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये कौन से स्पीसीज़ है, ये बताओ. ये स्टेटमेंट हमेशा तो सही होगा. इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज. ये अगर टाइगर के बारे में बोले तब भी तो ये सही होगा कि सम फॉरेस्ट में तो है, हर जगह तो नहीं है ना. जम्मू कश्मीर में टाइगर नहीं है ना. तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये गलत होगा. अच्छा देखो, इसमें मुझे कन्फ्यूजन था, इसीलिए क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया. ये राइट होगा, मैंने इसको रॉन्ग समझा, दैट्स इट. ओके, मुझे पता था कि इतना कम नहीं है ना. इंडिया का CO2 एमिशन कम है बट इतना कम नहीं है, तो मैंने इसको गलत कर दिया. बाकी ये दोनों जनरल सही है और ये सही हो गया. मूविंग ऑन. कसावा को अब देखो कभी कभी लक कम कर जाता है. मैंने ओनली 3 लगाया बट आई थिंक मेरा जो ऑप्शंस हैं मैंने उसको मिसमैच किया. देखो मुझे पता था मिंट इज़ लाइक वेरी स्मॉल प्लांट, इट्स अ काइंड ऑफ हर्ब, है ना. और पपाया का पेड़ तो मैंने देखा है. एंड हर्ब विथ सूडोस्टेम, ये मुझे पता था, ठीक है, ये मुझे पता था. और आई थिंक मैंने एक इन दोनों में आई वुड से मैंने वो जंबल किया. सो कभी कभी आपका लक साथ भी दे देता है ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आई वुड से कि ओनली 1 ओनली 2 रहता है ना. मूविंग ऑन. अच्छा, मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि मैं ये सारे ऑप्शन नहीं जानता था, फिर भी मेरा क्वेश्चन सही हो गया. अगेन 70th क्वेश्चन, प्योरली बेस्ड ऑन दी स्टैटिक नॉलेज. आपको पता होना चाहिए कि जो मरीन फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो दे प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन. सो तीनों पार्ट यही कहते हैं. बस आपको देखो ये गलत है, ये सही है. एक ही नॉलेज से हो रहा है कि ये आपको पता है जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो ओशन में पाए जाते हैं, दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन. दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. दे क्रिएटेड द बेसिकली द होल एटमॉस्फेयर, राइट. तो ये सही हो गया, तो ये गलत हो गया ऑब्वियसली. एंड वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन द एटमॉस्फेयर है. नाउ दैट्स स्टूपिड. व्हाई दैट्स स्टूपिड? बिकॉज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज अराउंड 20%. और किसी भी कैसा भी पानी हो
उसमें जो ऑक्सीजन खुली होती है दैट्स वेरी वेरी मिनिमल, आई वुड से लेस देन 1%, है ना। तो ये तो गलत होना ही था, तो ये सही हो गया, ये कॉमन सेंस से हो सकता था। हाँ, फिर इसमें भी मेरा लक काम किया। देखो लक भी कहीं नहीं काम किया तो कहीं काम भी किया, तो कांट ब्लेम लक। मुझे लगा कि ऑस्ट्रिया होगा, और आई थिंक मतलब मैंने देखो मुझे पता था कि सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो नेटो का पार्ट नहीं है, तो मैंने सोचा कि कौन सा ये, मैंने सोचा सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं है, और ये 2 3 4 हैं, ठीक है। टर्न्स आउट कि ऑस्ट्रिया नहीं है और आई थिंक सर्बिया नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ओनली 4 ऑप्शन सही हो गया था। एंडीज ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, आई वुड से मैपिंग प्रैक्टिस से हो जाता, बट मेरा गलत हो गया, मेरा भी एक ही कंट्री से ऑफ था। आंसर इज़ आई थिंक ओनली 3, मेरा मैंने 4 लगा रखा है, सो अगेन ब्राज़ील के कारण गलत हो गया था मेरा। नहीं ब्राज़ील के कारण नहीं, सॉरी, बोलीविया के कारण, इक्वाडोर के कारण मेरा गलत हुआ। इक्वाडोर की पोजीशन मुझे गलत याद थी। सो मेजर जो भी कंट्रीज़ हैं बेसिकली आपको मैप में उनकी रिलेटिव पोजीशन याद होनी चाहिए, एंड व्हाट आई मीन बाय रिलेटिव पोजीशन, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कोई कंट्री यहाँ पे है कि यहाँ पे है ना, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आई वुड से वेरी टफ, नहीं आता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मैंने फिर भी शायद इसमें ओनली 2 मारा है, क्योंकि मुझे पता था ये गलत है। तंगनीका मुझे पता थी लेक कहाँ है, बट अगेन टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन। स्टैटिक नॉलेज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यस दिस इज़ अ जनरल, सॉरी दिस इज़ अ फैक्चुअल कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सॉरी यहाँ से, बाकी दिस इज़ अ जनरल, मोर देन 30 वेराइटीज़, किसी भी चीज़ की इतनी वेराइटी तो हो ही जाते हैं। एंड या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दीज एरियाज़ आर स्पाइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़, और इसके अलावा क्या ही है। सो यस ऑब्वियसली सही होगा। ये पूरा एनसीईआरटी से उठा के दे दिया है, आप देखना एनसीईआरटी फिज़िकल ज्योग्राफी का चैप्टर 2 या 3 पे ये तीनों स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखे हुए हैं। सो ये इजी, आई वुड से इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी है ना, इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रीलिम्स के एस्पायरेंट्स को। अगेन फिर भी आई वुड से स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द सब ट्रॉपिकल इज मोर, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है लाइन बाय लाइन, देयर इज़ अ लाइन अबाउट डस्ट पार्टिकल्स, देयर इज़ अ लाइन, अगर आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको ये लाइन याद आएगी जब आप उसके जब उसके सामने आओगे आप। तो लेस विंडी, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अगर आप मैप बनाओगे, ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। यहाँ पे भी तो विंड्स आती है ना, ये लो है, यहाँ से हाई, ऐसे ऐसे विंड आती हैं। सॉरी उल्टा कर रखा मैंने, पर समझ जाओ आप, ऐसे यहाँ पे भी विंड आती है, यहाँ से सब ऐसे, तो इट्स नॉट लेस विंडी, आई वुड, मेरा मतलब ये था। और इसका भी डायग्राम अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सो आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी बट इट्स सर्टनली नॉट टफ। अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी में मिल रही है इट्स नॉट टफ, इट्स नेवर टफ, बिकॉज इतनी पतली एनसीईआरटी है ना, 100 पेज की 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती हैं ज्योग्राफी में। ओके ये क्वेश्चन अगेन 2 बार आ चुका है, लास्ट 3 ईयर्स में 2 बार ये क्वेश्चन आया। PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। सो इवन दो दिस क्वेश्चन इज़ मॉडरेट, अगर आपने PYQ किया है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एंड इट शुड बी ईजी फॉर यू। आई वुड डिस्कस दिस क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा कंसेप्चुअल है, इट विल बी टाइम टेकिंग, बट रेस्ट एश्योर्ड इट इज़ मैंशनड इन द एनसीईआरटी विद द डायग्राम, एंड इट इज़ आस्क्ड इन आई थिंक 2 years बैक ऑल्सो। ओके ये क्वेश्चन से, क्ले इज़ नॉट पोरस एट ऑल, दैट कैन नॉट हैपन अनलेस इट्स लाइक वॉल्केनिक रॉक, एवरीथिंग इज़ सम वॉट पोरस। पानी थोड़ा सा तो चाहता ही है क्ले से, क्ले का मटका होगा तो पानी थोड़ा तो लीक करेगा ही ना, तभी तो इवेपोरेशन होता है और मटका कूल करता है पानी। सो दिस इज़ रॉन्ग, इसको रॉन्ग करते ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना, जो भी आंसर आता है। ओके इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट है, बट I think my answer is right. See, without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the earth's surface. I think that's incorrect. Some coaching ने इसे correct ले रखा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है,
कि अगर लेट्स से हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर ना हो, अगर सन यहाँ से सन रेज आ रही ना, तो इस स्पॉट में जहाँ सन रेज पड़ रही हैं वी वुड हैव वेरी हाई टेम्परेचर, और बाकी जगह जहाँ सन नहीं पड़ रही हैं वी वुड हैव टेम्परेचर इन माइनस. So I would say the temperature would be rapid, like in extremes, not below freezing points everywhere on the earth. So this should be wrong. Other two are like very general point on the I would say atmosphere and the greenhouse gases. So these are right. राष्ट्रीय गोकुल मिशन, टू वेरी जेनरिक पॉइंट. मैंने बस स्कीम के बारे में जानता था, मैंने कभी पढ़ा नहीं था. बट दीज टू आर वेरी जेनरिक पॉइंट, दिस शुड बी करेक्ट. इतना लगा नहीं चाहिए आपको. यू शुड ऑल्सो बी ब्रेव इनफ, प्रीलिम्स की 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, यू शुड बी वेरी ब्रेव. राजा राम मोहन रॉय, ही possessed great love for respect and tradition philosophy system of East. Yes, he had great respect because he had learned Vedas and Upanishad. He was follower of Upanishad. उनका प्रचार भी करते थे. So it is right. And he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach. Yeah, it's both are true. It's easy. See, इसमें odd one out है basically. Retention of the title. Why would they say retention of the title, right? So this is wrong. Rest are the standard things that non-cooperation program was doing. So only 3 would be right. Agrahatta, again PYQ सीधा PYQ से क्वेश्चन है. महेंद्र वर्मन, कुछ भी अगर आपको पता है तो ये पता होगा. इसका सोर्स मैं बता देता हूँ. अगर आपको एंशियंट एंड मिडिवल पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम है, तो आई थिंक पूनम दलाल इज़ अ गुड बुक. You can find most of the question which are doable in history, ancient and medieval history. Poonam Dalal can be used. So इसमें मुझे इन दोनों में डाउट था, मैंने ये सही किया. फायान, ये किसी भी कोई भी एंशियंट हिस्ट्री की बुक उठाओगे, इजी क्वेश्चन. राजेंद्र चोल के बारे में कुछ भी जानते हो तो एक चीज़ जानते हो कि दे इन्वेडेड लाइक कैप्चर्ड लाइक मैनी लैंड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका. दैट्स ईजी. अब देखो मेरा ये 2 इनमें से 4 थे. देखो मैं बोलता हूँ ना, लक से कभी सही होता है, लक से कभी गलत भी होता है. तो मुझे पता था कि अवंती नहीं है और ये सही है ना, और ये गलत हो गया मेरा, है ना. तो आई थिंक द ऑप्शन इज़ ओनली 2. मैंने ओनली 3 मार दिया. दैट्स इट. ओके. अब देखो 88 क्वेश्चन. मैंने गंधर्व महाविद्यालय कभी सुना भी नहीं था. मैंने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री, बट नेवर हर्ड ऑफ दिस. बट देखो तीन इंडिया की सिटी हैं, प्रोमिनेंट सिटी हैं जहाँ म्यूज़िक का नाम है. एक है लाहौर. मुझे पता था कि 1901 प्री पार्टीशन की बात है, तो लाहौर इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव बिकॉज लाहौर वॉज बिग सिटी प्रायर टू इंडिया, लाइक प्रायर टू पार्टीशन ऑल्सो. दैट्स इट. ऑड वन आउट यूज़ किया मैंने. अब देखो पहले क्वेश्चन में मेरा ऑड वन आउट गलत हुआ था, बट इस बार सही हो गया. सो इवन इफ इट्स वर्किंग विथ 1/2 एक्यूरेसी, इट्स स्टिल गिविंग मी पॉजिटिव मार्क्स एंड दैट्स गुड. अब देखो ये आई थिंक डिस्ट्रिक्ट लेवल है एंड आई यूज दिस ऑप्शन, सो आई वॉज रॉन्ग, सो आई कांट लाइक कमेंट. मैंने ये पढ़ा था बट अगेन आई गॉट कन्फ्यूज विथ ऑल दीज ऑप्शंस. दे लुक लाइक क्वाइट सिमिलर टू मी, लाइक आई कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, सो इट वॉज रॉन्ग. ये काफ़ी स्टैंडर्ड स्टफ है, स्वराज मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स. सो सी बोथ वर करेक्ट. ओके. अब ये जो हाँ बस इकोनॉमी के क्वेश्चन दो कई. इनमें से क्या है, देखो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. देखो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो बॉन्ड एंड स्टॉक्स आर लाइक दे आर नॉट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दे आर लाइक आई वुड से बॉयलर प्लेट इन्वेस्टमेंट फंड. जो हेज फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड होते हैं बेसिकली दे आर कॉल्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. अगर आपको इकोनॉमी का रेफरेंस चाहिए, आई वुड से विवेक सिंह की बुक. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक. मैंने अपने पहले भी वीडियो में ये रेकमेंड किया और मैं अब भी करता हूँ. सो you know I'm consistent on my like sources I've used, so these are good sources. Again Vivek Singh economy book, all these things are mentioned. ये तो इजी था, है ना. ये दोनों ऑप्शन इजी थे, बस लोगों को इसमें डाउट था. प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नोट्स ऑल्सो इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर RBI. इट्स अ फैक्ट. ये फैक्ट क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट हियर. ओके. दिस ऑप्शन, इसमें फिर से तुक्का है, थोड़ा तुक्का तो होगा, सारे डिपार्टमेंट आप जान नहीं सकते. बट देखो डायरेक्टर फॉर इन्फोर्समेंट जो है ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है. इट्स नॉट रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री, राइट. तो ये गलत हो गया. अब देखो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड दैट्स करेक्ट.
है ना, ये करेक्ट हो गया. डेटा मैनेजमेंट फाइनेंस, दैट्स काइंड ऑफ you can call it tukka. So only 2 is correct. Okay. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स ऑल लिस्टेड कंपनी. सो देखो ये सही होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब कोई लिस्टेड कंपनी की बात आती है, यू शुड रिमेंबर हु लिस्ट द कंपनी, हु इज मेकिंग रूल फॉर लिस्टेड कंपनी. इट्स SBI, right? Not the RBI. RBI does not do listed unlisted. The SEBI does it, right? The capital market. तो ये ऑप्शन गलत हुआ है ना, और ये सही है. देखो मैंने ये क्वेश्चन गलत किया क्योंकि मैंने इसको भी गलत कर दिया. बट इफ़ यू रीड दिस बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, दे आर काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल टर्म्स, दे आर काइंड ऑफ सोशल टर्म्स. तो ये जो होंगे ना, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर होगा इनका. बेसिकली हमने ये अच्छा किया, इसमें ये अच्छा किया, they'll don't say profit loss, return on investment, ये कम यूज़ होगा इसमें. सो इट कैन बी यूज लाइक थोड़ा नॉलेज यूज़ हो सकता है. मैंने यहाँ नहीं किया, इसमें मेरा नॉलेज इतना ही काम कर गया बस. तो ये दिस पॉइंट आई गॉट, दिस पॉइंट आई फेल्ड, सो क्वेश्चन गॉट रॉन्ग. अब देखो मुझे ये पता था, इस क्वेश्चन में आओ. इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर इज़ नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट अंडर, मतलब रूरल एसेट में रूरल एग्रीकल्चर लैंड में कैपिटल एसेट्स, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगता. बेसिकली इसका मतलब ये था इस स्टेटमेंट का. अभी देखो मुझे पता है कई जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ले रखी है और उसको अपने बेटे बेटियों को गिफ्ट भी करते हैं. आपने सुना होगा न्यूज़ में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा. एंड ओनली रीज़न इज़ दैट इट इज़ कैपिटल टैक्स फ्री. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. तो इससे आपका क्वेश्चन हो गया. ये सॉरी मैंने इसको आई थिंक लॉन्ग गलत लगा रखा है. सो अगेन आई एम रॉन्ग बट दिस लॉजिक इज़ करेक्ट, राइट. मूविंग ऑन. अभी देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में था. करंट अफेयर में पार्लियामेंट ने एक वुड से सर्कुलर जारी किया था जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी थी. अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो हमारी इकोनॉमी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वेरी क्रिटिकल हैं और उनकी सप्लाई इज़ नॉट स्टडी, आई वुड से. तो देखो अब ये पॉइंट पढ़ो. इंडिया इज़ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल. अब अगर ऑल 30 में हम रिसोर्स रिच ही होते हैं तो वो क्रिटिकल ही ना होते. अगर हमारे पास कोई चीज़ है जैसे कोल भरा पड़ा है हमारे पास, तो वो क्रिटिकल ही नहीं है ना. क्रिटिकल इसलिए है कई चीज़ें क्योंकि वो चाइना से मंगा रहे हैं हम, और कल को हमारा युद्ध हुआ तो चाइना रोक सकता है. दैट व्हाट मेक्स इट क्रिटिकल. सप्लाई चेन रिस्क इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट इट मेक्स इट क्रिटिकल. सो दिस हैज़ टू बी रॉन्ग, और उससे आंसर आ गया, राइट. मूविंग ऑन. दिस इज़ आई वुड से वेरी बेसिक थिंग्स about finance and capital market and how it works. तो I would say moderate question, not easy question. Moderate I would say, क्योंकि पहले के सालों में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, है ना, तो किसी का ध्यान नहीं जाता है. इंडिया अकाउंट, बट अगेन विवेक सिंह अगर फॉलो किया होगा यू विल गेट द आइडिया कि कौन सा क्वेश्चन सही है. इंडिया अकाउंट फॉर ओके, ये लास्ट ऑप्शन पढ़ो. देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी टू वॉर्न स्मॉल इन्वेस्टर. सेबी की एक पूरा डिवीज़न है जो कि स्मॉल इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए. आपने पढ़ा होगा, सेबी के बारे में पढ़ा होगा. तो इन्वेस्टर एजुकेशन का फंड होता है उनके पास एक स्पेशल. सो दिस कैन नॉट बी राइट. उससे क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है मुझसे. सर्कुलर इकोनॉमी, ऑल 3 थिंग्स आर लाइक वेरी जनरल एंड वेरी करेक्ट. सो दिस हैज़ टू बी राइट. सर्कुलर इकोनॉमी की आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. नहीं भाई, इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव किया वो लाइबिलिटी नहीं है. कैसे लाइबिलिटी? वो तो आप ही का पैसा था. लाइबिलिटी तो तब होती है ना जब अपना कुछ बेच रहे हो, बेसिकली पैसा, या फिर बोरो कर रहे हो. तो ये कुछ ये गलत हुआ, इससे ये गलत हुआ. ये भी इजी क्वेश्चन था. ओके, जितने भी मैंने बेसिकली क्वेश्चन आई वुड से डिस्कस किए हैं, लेट मी समराइज एवरीथिंग. सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन आई हैव अटेम्प्टेड 99 क्वेश्चंस. So everything except one question I've attempted, even though the paper was lengthy and confusing. So what the learning point is, you must see. मेरे पास 4-5 प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने 99 किया. तुम्हारे पास अगर 1-2 का है, कम से कम 90 पार तो जाओ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तुम्हारे चांस है. क्योंकि देखो ना, अनसर्टेनिटीज लाइक वेरी हाई इन द प्रीलिम्स. सो मस्ट अटेम्प्ट 90+. ये लर्निंग पॉइंट है. मेरे आई वुड से 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं.
अगेन डिपेंड्स ऑन विच कोचिंग आई एम यूजिंग फॉर रेफरेंस. सो मेरे आई थिंक 118 से लाइक 125 तक बन रहे हैं. सो दिस इज़ रेंज. अगेन दिस रेंज इज़ लॉन्ग. आई वुड से आई थिंक इट्स 110 से 122. दिस इज़ द रेंज. तो आपको इतना आगे होना पड़ता है रेंज से ताकि आप एश्योर्ड हो सको कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है, वरना थोड़ा लक तो होता ही है. और वो मेरे साथ था. आई वाज लकी इन द लास्ट ईयर पेपर बिकॉज क्योंकि 3-4 क्वेश्चन कैंसिल होने के बाद भी मेरा काफ़ी क्लोज गया, वरना हो सकता ना भी हो. तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, स्टिल देयर इज़ अ लिटिल लक इन्वॉल्व्ड, है ना. PYQs आर इम्पॉर्टेंट. आई यूज्ड logic and knowledge in solving this year's paper. So PYQs are still very important, I would say. अब देखो एक और लर्निंग पॉइंट. मैंने 4 प्रीलिम्स क्या किए हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जिसको मैंने IAFS का कट ऑफ पार किया है, राइट. स्टिल बाई डूइंग दिस ऑल्सो मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं. आपको मैंने इस क्वेश्चन पेपर में दिखाया सिली मिस्टेक्स की हैं. क्वेश्चंस को बेसिक क्वेश्चंस को गलत किया है. स्टिल आई मेड इट. What my point is कि it's very natural to make mistakes. It's very natural to get confused in the long statements. My message is कि you have the capability. You just don't have to give up when you see a large question, when you see a confusing question. Sometimes the questions are confusing but the options are easy. So you have to make attempts. You have to work toward it. और ये कहाँ से start होता है? In your mock test also you don't have to give up. You know, कभी कभी होता है क्वेश्चन पढ़ा और गिव अप कर दिया, यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं. नो, मैंने भी नहीं पढ़ा. इतने क्वेश्चन मैंने बताए कि मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं. स्टिल आई अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चन एंड गॉट इट राइट. सो यू हैव टू फाइट द क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गिव योर फाइट, है ना. और ये आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हो. दैट्स इट. मैं बस चुप होता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है गाइज. एक और थिंग थी, मैं सोच रहा था, देखो मैंने एक टैब में खोल रखा है NCERT क्लास 11. सो आई एम मेकिंग लाइक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियो फॉर NCERT आई वुड से जियोग्राफी. तो आपको प्रीलिम्स के लिए उतनी जियोग्राफी पढ़नी जितना मैं अपने वीडियोस में दूंगा, बिकॉज उतनी ही मैंने पढ़ी और मैं ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आई गेट राइट फॉर द प्रीलिम्स, राइट. Thank you and have a nice day. Do comment and anything you want to ask, you want to request. Thank you. Good night. Bye bye.